Good morning, students. This is lecture number 10 on vectors, and today we are first going to finish everything about dot product. Last time we were left with one article, and that is projection of one vector on the other. Last time, student, am I audible? I don't need to use the mic, right? So last time we were left with one article which was projection of one vector on the other. Today we are going to learn about this, but before that, let us take up the doubt solving. Question number 1 to 5, except second question. Anybody, any doubt? First of all, what were the formula, students? A bar dot B bar is A into B into cos theta, or else AX into BX plus AY into BY plus AZ into BZ. Yes or no? Next, if you wish to find out angle between two vectors, then you can reuse first formula, which is A bar dot B bar upon AB. Yes or no? Yes. And you can elaborate this formula because numerator is AX into BX plus AY into BY plus AZ into BZ upon root of AX square plus AY square plus AZ square and root of BX square plus BY square plus BZ square. Thereafter we have three possibilities. After solving, if our answer turns out to be a positive value, right, then the angle is acute, right? If the answer turns out to be 0, 90 degree. Then it is 90 degree. And if it turns out to be obtuse, then angle is obtuse. If it turns out to be a negative angle, I'm so sorry, then the answer is going to be obtuse. And we know one thing right from the beginning, that this cos theta value has to lie between +1 and -1. It cannot cross this range, yes or no? Means we will never come across cos theta as 1.2, the other cos theta is 2.7. It will be wrong. Deliberately they have given that option to misguide you. You have to discard those options right from the beginning. Yes or no? So now please tell me one by one, any help required in questions 1 to 5? First 5 questions. Please don't hesitate. अगर कुछ भी नहीं आया तो पूछो प्लीज. क्वेश्चंस 1 to 5 आया बेटा आपको? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको आया होगा 60 डिग्री, क्योंकि सॉल्व करने के बाद cos थीटा आया था उसमें 7/14 which was 1/2 and therefore it was 60 डिग्री. अगर वो -½ आता तो 1/2. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया होगा. यस एवरीवन? चलो बेटा 6 to 10 में किसी को कोई डाउट? 10th क्वेश्चन. अब इसमें ध्यान से देखो, फोर्स आपको उन्होंने 3 डायमेंशन में दिया है ना? समथिंग I प्लस समथिंग K प्लस समथिंग K. लेकिन डिस्टेंस उन्होंने 1 डायमेंशन में ही दिया. अब या तो मेरे पास दोनों 3 डायमेंशन में होना चाहिए और या तो मेरे पास दोनों 1 डायमेंशन में होना चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली वो जो 3 डायमेंशन वाला वेक्टर है उसको मैं 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10, असाइनमेंट नंबर 3. The force vector is given as 7i minus 4j minus 4k. Force vector is given as 7i minus 4j minus 4k. Can I write therefore the magnitude of force as root of 7 square plus minus 4 square plus minus 4 square, which is root of 49 plus 16 plus 16, which is root of 81, which is 9. तो बेटा फोर्स मिल गया. डिस्प्लेसमेंट मुझे वैसे ही पता था 10. यस और नो? एंड देयरफॉर कैन आई से वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उन्होंने सेम डायरेक्शन बोला होगा. इट्स ओन डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन. दैट्स व्हाई cos थीटा नीड नॉट बी रिटन, राइट? नहीं तो cos थीटा कुछ लिखना पड़ता मुझे. सो इज इट 9 into 10, that means your answer is 90 joules. 90 joules. 10th question. Between 11 and 15, 11 और 15 नहीं करना था, because we are still left with one word, which is electric flux or magnetic flux. So they are flux related questions. This I will be able to explain you after explaining cross product and axial vector, because इसका यूज होता है इसमें. अब तक हम लोग सिर्फ ये बोलते थे कि area is a scalar, surface area is a vector. But Q, that we are going to understand when we start with cross product.
Anyways, 12, 13, 14. Anybody, any doubt? 13, 13, 13, 13. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. Good, good. I want you to underline the words mutually perpendicular. If two vectors are mutually perpendicular, what can you say about the dot product? Very good. If two vectors are mutually perpendicular, what can you say about dot product? So जिनको 13th नहीं आया था, check करो बेटा. First vector is 5y plus 7j minus 3k. First vector is 5y plus 7j minus 3k. Have they given some name, A, B, P, Q, something? P. Okay, vector P is this. Vector Q is 2y plus 2j minus ak. 2y plus 2j minus ak. Yes or no? This is vector Q. Now, since vector P is perpendicular to vector Q, therefore, can I say vector P bar dot Q bar should be 0? इसका मतलब px into qx plus py into qy plus pz into qz should be 0. That means something into something plus something into something plus something into something should be 0. Fill in the blanks. First vector is 5, 7, minus 3. So 5, 7, minus 3. Second vector is 2, 2, minus a. So this is 2, and this is minus a. Right? So this gives me 10 plus 14 plus 3a is equal to 0. That means 24 plus 3a is equal to 0. That means 3a is minus 24, and therefore a should be value minus 8. A should be minus 8. This is 13th. जिनको नहीं आया था, नहीं आया तो बेटा बिंदास पूछ लो, बट कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम आपको आना चाहिए. Right? I will always see the positive side of it. See, I had given you 23 questions. Right? अभी तक मैंने 1 to 15 जो भी पूछा उसमें आपके 2 या 3 ही डाउट्स थे. So I will see the positive side of it कि चलो बच्चों को 10 questions तो खुद से समझ में आए. That is how it should be. You are going to give the main exam. Okay? 13 समझा सबको? Any help required in 14th? Anybody? 14th में बेटा 2 डिस्प्लेसमेंट्स है, बराबर ना? अभी आपको एक ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप जब एक डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? इनिशियल माइनस फाइनल कि फाइनल माइनस इनिशियल कि यू ऐड देम? एग्जैक्टली. जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, हम लोग ऐड नहीं करते उनको, क्योंकि ऐड किया तो रिजल्टेंट ढूंढा. एम आई राइट? तो 14th क्वेश्चन में एक ही कैच है, आपके पास S1 S2 दो है ना, एक S1 वेक्टर है और एक S2 वेक्टर है. आप S ढूंढ लो पहले. इट विल बी S2 minus S1. हैज एनीबडी कैलकुलेटेड दिस? बेटा मुझे ये वेक्टर बताओ, सिर्फ ये प्लस 15. Everybody, those who got this answer, did they get this as S vector? Yes. समझा बेटा? S2 minus S1. अब F वेक्टर बताओ मुझे, एक जन बोलो प्लीज. F वेक्टर 4i plus 3k. Sorry, 4i plus j plus 3k. ओके, 4i plus j plus 3k. तो बेटा ये हो गया फोर्स वेक्टर और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर fx sx plus f. मतलब 11 4s are 44 plus 1 11s are 11, that is 55, and this is 3 15s are. So answer should be 100. So इसमें एक ही कैच था, 2 डिस्प्लेसमेंट्स दिए थे, आपको एक ही चाहिए. तो व्हाट इज वन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2? फाइनल माइनस इनिशियल. उसमें फाइनल माइनस इनिशियल करने का, इनिशियल माइनस फाइनल किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. बी केयरफुल प्लीज. वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी नेगेटिव, वर्क डन में भी 0. तो अगर किसी स्टूडेंट ने इसको S1 माइनस S2 ले लिया ना तो उसका आंसर रॉन्ग आएगा. बी केयरफुल प्लीज. सो दिस वाज 14th. 15th मैंने ना बोला था शायद. ओके. 16 to 20 में किसी को कोई डाउट? अच्छा वो तो बोला ही, वो आज करेंगे, नो प्रॉब्लम. डायरेक्ट बाद में मुझे लगता है जंप मारा था 31 to 35 में कोई डाउट? 35, 34 ऑल्सो. एनी अदर डाउट? 31 to 35 की बात चल रही है. 31 to 35 में 34 and 35. ओके, कॉन्सेंट्रेट. Assignment 3 question 34, and then assignment 3
Question 35. Concentrate. Question 34. It says a particle which moves with a velocity of 6i minus 4j plus 3k under the application of force 20i plus 15j minus 5k, then what is the instantaneous power? किसका doubt है ये? हाँ instantaneous. Otherwise power का formula is very easy बेटा. Power is FV plus FV plus FV. X के साथ X को multiply करो, Y के साथ Y को और Z के साथ Z. But I appreciate the word instantaneous is new for you. Now listen to this word carefully. The word instantaneous means observer's choice, your choice. All the watches in the world, they have got minute hand, hour hand. Some watches have second hand also. Periodic time of second hand is fixed, 60 seconds. दुनिया का कोई भी वॉच उठा के देख लो, कोई भी क्लॉक उठा के देख लो. आवर हैंड के लिए टाइम इज फिक्स 12 hours. मिनट हैंड के लिए टाइम इज फिक्स 60 minutes. Right? So that is called periodic time. Periodic time is defined as the time taken by the particle to complete one blah. Blah means fill in the blank. Fill in the blank means name of the chapter. So time period is defined as the time taken by the particle to complete one circle or one oscillation or one rotation or one cycle or one wave. Let me put it this way. Time taken by the second hand of the watch to complete one rotation is always 60 seconds. Minute hand is always 60 minutes. Hour hand is always 12 hours. Earth completes one revolution around the sun in 1 year. The length of 1 year is 365.25 days because leap year में एक day extra होता है और वो day हमको 4 equal parts में divide करना होता है चारों years को देने के लिए. Yes or no? Then Earth's rotation about itself is 24 hours. ये सब fixed timings है, ये आप change नहीं कर सकते हो, right? You cannot say, Earth, can you please rotate very fast? Today's day is very bad day for me, so I want this day to pass over fast. It can't. It can't, right? You do whatever you want to do. Earth is not going to change this time period of rotation. So that is called periodic time, and the symbol is capital T. I will make you write about this. Don't worry. Instantaneous time is your choice. I want to take my reading at 15th second. I will take it at 15th second. I will not wait for second and to complete one rotation. He wants to take his reading at 22nd second, 22nd second, 35th second, 35th second, 72 seconds, 72. मतलब 1 minute के बाद, no problem. But it is something other than 60, no? That is called instantaneous time. एक इसका दूसरा meaning देता हूँ. You are driving from Bombay to Pune. Distance between Bombay and Pune is approximately 200 kilometers, approximately. And suppose you start your car at 8 o'clock in the morning and you reach at 12 noon. That means your average speed is 50 kilometers per hour because you covered 200 kilometers in 4 hours. Yes or no? That is called your average speed, right? Now it is not that every time on the speedometer your speed was 50 only. At some places your speed was 80. At some places your speed was 140. At some places your speed was 0 also. Maybe you were standing on the red signal. So your speed was 0 also, right? So when you take your reading at one particular instant of time, that is called instantaneous speed, right? Average speed is total distance covered upon total time. ये आप अपने स्कोर्स में भी ऐसे मैनेज कर सकते हो. आपका नीट का पेपर 60 मिनट्स का होता है स्टैंडर्ड सपोज, और इसमें आपने 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको एवरेज टाइम मिलता है 1.33 मिनट्स पर क्वेश्चन बिकॉज इट इज 60 फॉर 45 क्वेश्चन. 60 अपॉन 45 इज 4/3, 4/3 इज 1.33. अब ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में 1.33 मिनट्स लगता है. कोई क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाता है, कोई 35 सेकंड में होता है, कोई क्वेश्चन को 2.5 मिनट भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. बट योर एवरेज स्पीड शुड बी दिस बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो गुड यू आस्क्ड मी दिस वर्ड. इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब समझा बेटा? सब लोग हैंड रिटन पेजेस पेज 1 पे जमा, जो भी ऐसा एक्स्ट्रा नया वर्ड आता है उसके बारे में लिख के रखने का, बिकॉज फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होता है. आर यू ऑन पेज 1? उसका ऑपोजिट पेज इज ब्लैंक कंप्लीटली, उसको आप पेज 0 बोल दो, हाँ? और वहाँ पे ये मीनिंग लिखो.
पहला टाइटल दो पीरियड, सिंबल लिखो कैपिटल टी, पीरियड पीरियड पीरियड, periodic time is also called period. Take down. It is the time taken by the particle. It is the time taken by the particle to complete one. उसके बाद में ना अलग अलग वर्ड्स आएंगे, सर्कल, वन सर्कल, ऑब्लिक, रोटेशन, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम आएगा बेटा. वन सर्कल, चैप्टर इज सर्कुलर मोशन. वन रोटेशन, तो सर्कल करके ऑब्लिक करो, रोटेशन, ऑब्लिक, ऑसिलेशन, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब आइदर और, सर्कल और रोटेशन. ऑब्लिक मतलब क्या, ऐसा, सर्कल, ऑब्लिक, रोटेशन, ऑब्लिक, oscillation, oblique, wave, oblique, cycle, डॉट डॉट डॉट. मतलब ये नेम ऑफ द चैप्टर के हिसाब से डिफर करेगा. पीरियोडिक टाइम का मतलब समझा, इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ब्ला, वेयर ब्ला इज द नेम ऑफ द चैप्टर. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखने का, फॉर एग्जाम्पल T of second hand is 60 seconds. या आप और मैं चेंज नहीं कर सकते हैं. T of minute hand is 60 minutes, which is 3600 seconds. ये भी आप और मैं चेंज नहीं कर सकते. T of hour hand is 12 hours, or it is 43,200 seconds. Time period of Earth's rotation is 24 hours, or otherwise it is 86,400 seconds. ये मैं सबको सेकंड में क्यों लिख रहा हूँ? Because official unit of time is always seconds. So while solving the problem, even if they have not asked, you will have to convert it. That's why I'm writing all these answers in second also. और ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? अभी नेक्स्ट लाइन लिखो, इंस्टंटेनियस टाइम. टाइटल दो, इंस्टंटेनियस टाइम. द सिंबल विल बी स्मॉल t. हैव यू कॉपीड द प्रीवियस वैल्यूज? Keep going on, I can wait. Have you copied these values? Please take. Done? Okay. Now instantaneous time. Symbol will be small t. It is the time of the choice of the observer. It is the time of the choice of the observer. Means as an observer, whenever you want to take the reading, or when the examiner asks you what will be the answer at 17th second. अब जैसे मैं example देता हूँ, second hand of a watch is at 12 right now. I am asking after 20 seconds what will be the angle covered. आपको मालूम है कि 60 seconds में ये 360 डिग्री कवर करता है, तो 20 seconds में ये 120 डिग्री कवर करेगा, 15 seconds में ये 90 डिग्री कवर करेगा, 10 seconds में ये 60 डिग्री कवर करेगा, 5 seconds में ये 30 डिग्री कवर करेगा. कॉमन सेंस. 1/4 circle is divided in 12 equal parts, and those 12 equal parts means 360 degree is divided into 12 equal parts. So 12 to 1 मतलब कितना एंगल कवर हुआ? 1 part out of 12, which is 30 degree. 12 to 2 कुछ नहीं करना है बेटा, 30 का टेबल बोलना है. 32 सा, 12 to 3, 12 to 4, 12 to 5, 12 to 6. समझा? Sure. Good, you asked me the word instantaneous. Go back to questions, please. We were on which question? This was 33. Somebody asked me 34th also. This was 34th. Okay. Somebody asked me 35th also. ध्यान से देखो बेटा, उन्होंने फोर्स वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, और टाइम अलग से दिया है. तो पहले आप वर्क ढूंढ लो.
पहले आप 1 ढूंढ लो 35th क्वेश्चन में. चेक 35th जिनको नहीं आया. Have they given you force vector? Have they given you displacement vector also? And have they given you time separately? So this time what I will do is, I will not write power as force into velocity. I will write power as force into displacement upon time. That means my numerator is going to be fx sx plus fy sy plus fz fz upon time. पावर इज अ स्केलर. अभी मैंने पूरा इसको स्केलर नोटेशन में लिखा और ये ऑलरेडी स्केलर है. समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग अपॉन टाइम इज 8 सेकेंड्स. राइट. फर्स्ट वेक्टर इज 2i प्लस 2k. जानबूझ के दिया है उन्होंने ऐसा. ध्यान से देखो बेटा. फोर्थ वेक्टर इज 2i प्लस 2k एंड सेकेंड वेक्टर इज व्हाट? 2i प्लस 2j. अभी स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं मैं बोलता हूँ. ये ऊपर नीचे लिखा ना, तो स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता है. 2 to the 4 2 to the 4 8. नो, दिस इज 2i प्लस 2k means it is 2i plus 0j plus 2k and this is 2i plus 2j, therefore plus 0. तो बेटा ये प्रोडक्ट हो जाएगा 4, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और ये प्रोडक्ट भी हो जाएगा 0. राइट. सो इज इट 2 into 2 0 into 2 2 into 0. So is it 4 upon 8? The answer is half watt. इसमें किसका आंसर 1 आया? कौन से स्टूडेंट्स का आंसर 1 आया? आपने बेटा ये मिस्टेक किया. आपने इसको ऊपर नीचे देखा होगा, तो आपने 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, वो 8 आया न्यूमरेटर. 8 upon 8 1 आया. मिस्टेक समझा? मैंने हमेशा से बोला है कि आप कोई भी वेक्टर को IJK में लिखने की आदत डालो. पहले वो 2 ही बोलेंगे, आप तीनों लिखो. उन्होंने पहला वेक्टर क्या बोला है? 2i plus 2k. बेटर टू राइट 2i plus 0j plus 2k. सेकेंड वेक्टर बोला है 2i plus 2j. बेटर टू राइट 0k so that you will not make this mistake. ऐसा एक सेम डेंजरस क्वेश्चन शायद एक आंसर आ रहा था 20 और एक आंसर आ रहा था 26. ऐसा कोई क्वेश्चन भी था. चेक करो. कोई तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं. या आई थिंक इट वाज 33rd ओनली. नहीं 33 तो इजी. चलो एनीवेज, डाउट क्लियर. 35 डाउट क्लियर. 36 to 40 में किसी को कोई डाउट? यूज नहीं है. यू मीन टू से लेट मी चेक. फोर्स इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, वर्क डन. हाँ, मास उल्लू बनाने के लिए. पागल हो गई है क्या? वर्क डन है, वेट नहीं है. प्रभु, W पूछा है लेकिन W में वर्क पूछा है, वेट नहीं पूछा है. तो बाली की mg प्लीज यूज मत करना, अदरवाइज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों यूजलेस हो गया. मास उन्होंने दिया, ग्रेविटी मुझे पता है. ये सिंबल पे मत जाओ. ये नहीं, तूने ज्ञान दिया ना अभी, आपने पूछा तो मास उल्लू बनाने के लिए और तू पूरा उल्लू बना दिया मुझे. W सिंबल क्योंकि इंग्लिश में लिमिटेड अल्फाबेट्स 26, तो मजबूरी है हमको सेम सिंबल यूज करना पड़ेगा. वेट इज ऑल्सो फोर्स. तो उन्होंने ये 3 डायमेंशन में क्यों दिया है? Then you ignored what? Force vector, you ignored mass. Thank God, you ignored the right thing. Mass confuse करने के लिए. Sometimes they will deliberately do this so that your time is wasted in reading the question. (38) 36 to 40 में 38. Okay, I'm solving. Any other doubt? Anybody? 38. 38 concentrate. 38 question. They are saying what is the value of A? बेटा सेम क्वेश्चन किया हम लोगों ने, वो जिसका आंसर -8 आएगा. क्या करोगे बताओ? ax bx plus ay by plus az bz is 0. Are they perpendicular? Underline. हम लोगों ने परपेंडिकुलर वाला कौन सा क्वेश्चन किया बेटा? 13. तो आपको शायद 13 भी नहीं आया होगा, बराबर ना, इसलिए ये नहीं आया. अब आप 13 में जाके लिखो सॉल्व 38 और 38 में लिखो रिफर द स्टेप्स ऑफ 13. अभी आ जाएगा.
श्योर? एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? तो लास्ट टाइम मैंने जो होमवर्क दिया था, आई एम रियली हैप्पी, यू रियली हैड ओनली 4 to 5 डाउट्स. गुड. कीप दिस अप. आप जितना मैक्सिमम सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा. सी सर को तो आता ही है यार, मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ. मुझे तुम लोग सुबह 2 बजे भी उठा के बोलोगे ना ये प्रॉब्लम कैसे करना है, तो मुझे आया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मैं सेम चीज़ 32 सालों से पढ़ा रहा हूँ. आप लोग ये लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, राइट? सो मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, मोर विल बी योर कॉन्फिडेंस लेवल. सॉरी 12 ना बोला था नहीं. ओके 12 अच्छा क्वेश्चन, लेंथी है थोड़ा, अच्छा है. Has they given me vector A? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन. वेक्टर A, वेक्टर B, फिर मैं ट्वाइस A लिखूंगा, फिर मैं ट्वाइस B भी लिखूंगा. वेक्टर A, प्लीज लेट मी नो. 2i plus 3j plus 4k बराबर. वेक्टर B, okay, concentrate. If vector A is this, then vector twice A is double of that. So vector A, if it is this, then twice A should be 4i plus 6j plus 8k. And if vector B is this, then twice B is double of that. This is 2i plus 4j plus 6k. तो दो वेक्टर में से तूने दो वेक्टर और निकाला. अभी कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? चेक. You want 2a minus b, बराबर? You want 2a minus b as one more vector, and you want I think a plus 2b. Am I right? a plus 2b. a plus 2b. डायरेक्ट करूँ चलेगा? ये वेक्टर में से बेटा ये वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. So this gives me 3i plus 4j plus 5. ये समझा? मैंने ये वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये मिला. अभी मैं ये वेक्टर में ये वेक्टर ऐड कर रहा हूं. डायरेक्ट कुछ चलेगा? ओके, सो दिस इज 4i 7j 24k. 4i 7j, मैंने क्या बोला? मैंने 24 बोला, सॉरी फॉर दैट. ओके, दिस इज 4i plus 7j plus 10k. समझा? मेरे पास दो वेक्टर्स थे, दो और ढूंढे. अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट. सो व्हाट विल दिस बी? 2a बार माइनस b बार डॉट a बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू 3 into 4 plus 4 into 7 plus 5 into 10. So this will be 12, 28, 50. Answer will be 90. टफ नहीं था बट लेंथी था. ऑफ कोर्स इसको टाइम लगता है. तो मैं जब पूछता हूँ तभी तुम लोग सो रहे हो क्या? हाँ, इसको बोलते हैं सर को इमोशनल ब्लैकमेल कर. मैंने बोला ना तुम लोगों को 23 में से सिर्फ 5 भी डाउट आए. सर कैन वी डू 12 ऑल्सो? सर कैन वी डू 7 ऑल्सो? अरे सर असाइनमेंट 1 का मुझे 7th नहीं समझा था. सर मुझे 9th स्टैंडर्ड का ये भी नहीं समझा था. डू यू थिंक आई एम पुलिंग योर लेग्स? वेरी बैड. चलो ठीक है. कौन सा? 9th वन. उन्होंने बोला है कि ये वेक्टर्स पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल तो है नहीं. पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का एग्जैक्टली 3 टाइम्स है. पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का एग्जैक्टली 3 टाइम्स है. +3 है कि -3? तो पैरेलल है. एंटी पैरेलल बराबर. परपेंडिकुलर होता तो क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट सी. डॉट प्रोडक्ट सी. अभी समझा? किसी को और कोई बाकी का क्वेश्चन? लास्ट जन्म का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट. So I think whatever question I had given you, all the doubts cleared? Yes. Okay, now the new concept. Total focus on the board. Book बंद करो बेटा. Now it is projection of one vector on the other. Projection is also called component. मैं दो same vectors बना रहा हूँ. This is one vector. This is same vector, same size. Right? This is another vector.
This is another vector. This is another vector. Same size. Same size. मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ डायग्राम. Okay. This is vector A. This is vector A, and this is vector B. Suppose this is vector A, and this is vector B. Suppose. Okay. I am drawing exactly the same diagram. Right? This angle is theta. This angle is theta. Now the first topic is projection of vector A on vector B, and the second topic is projection of vector B on vector A. I am going for projection of A on B, and then I am going for projection of B on A. Projection का मतलब होता है shadow, foot of perpendicular, component. Shadow word we use in day-to-day life. Physics and maths में it is not allowed. Better word is component, and we know how to find out components, right? अभी इधर लिखा है projection of A, तो जिसके साथ of word है ना, मतलब उसका component निकालना है. On को disturb नहीं करना है, B को disturb नहीं करना है. मुझे B को disturb नहीं करना है और A का components निकालना है. So apply common sense. What should I do? From the tip of vector A, I should draw perpendicular on vector B. Advantage मुझे दो components मिला. ध्यान से देखो, एक ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला, क्योंकि पैरेललोग्राम कंप्लीट होना चाहिए. बराबर. ये देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ. यस और नो, ये यहां तक आएगा. समझा सबको? प्लीज लेट मी नो. समझा? मैंने बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब मुझे ए के कंपोनेंट्स ढूंढने, बी को टच नहीं करना है. डिड आई डू दैट? हाउ विल आई डू दिस ऑन राइट साइड? मुझे अभी प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए, राइट? दैट मींस आई विल नॉट टच ए. I will not touch A. I will take A as it is. From the tip of vector B, I will draw perpendicular on A. Right? This will be component number 1, and this will be component number 2. बराबर? तो who is this? Give the names now. Who is this? A का component है. कौन सा component? अरे क्या y component? Y axis ऐसा होता है. cos component. sin और cos होता है. तो who is this? A cos theta. राइट? थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ये वाला A sin थीटा. अगर ये sin थीटा है तो ये भी A sin थीटा है. प्लीज लेट मी नो. लेफ्ट डायग्राम समझा? आई एम सुपर स्लो इन एक्सप्लेनिंग दिस. अभी राइट वाला ये कौन है? A, this is B cos theta, and this is B sin theta. अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो. हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट उसमें साइन आता ही नहीं. अब मुझे चेक करना है साइन क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है. राइट? इज दिस A cos थीटा एंड इज दिस A sin थीटा? अभी मैंने इसमें B को टच नहीं किया था ना, तो B के साथ A cos थीटा का डॉट प्रोडक्ट लो. What is the angle between these two? 0. Very good. डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? पहला इंटू दूसरा इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन them. तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0. वेरी गुड. आंसर क्या है? A cos थीटा इंटू B. अभी दूसरा वाला ट्राई करते हैं. ये दोनों A sin थीटा इंटू B, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. इसका मतलब ये हुआ, ये मैं नहीं बनाऊं तो भी चलेगा, ये मैं नहीं बनाऊं तो भी चलेगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. मतलब मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट में इंटरेस्ट था, और वो कौन सा था? इधर मैंने किसको रिटेन किया और किसको जाने दिया? कॉस को रिटेन किया और किसको जाने दिया? उधर भी मैं कर सकता हूँ. कॉमन सेंस अप्लाई करो. ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? फैंटास्टिक. तो 0 आएगा तो क्यों लिखने का? बराबर. क्यों लिखने का? 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है. राइट? नाउ टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा? A बार डॉट B बार इज AB cos थीटा. A बार
dot b bar is ab cos theta. इधर मैंने a cos theta लिया हुआ है, राइट? तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, a cos theta into b, और इधर ये मेरा ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको मैं लिखता हूं a into b cos theta. समझा? याद करो मैंने लास्ट टाइम एलन मस्क और मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था? अभी दे देता हूं. a bar dot b bar is ab cos theta, right ki wrong? Okay. Is b a cos theta, right ki wrong? Is a into b cos theta, right ki wrong? Is b into a cos theta, right ki wrong? Right? Now a is Mr. Mukesh Ambani, b is Mr. Elon Musk, right? एलन मस्क को इंडिया में आना है कि मुझे टेस्ला गाड़ी बेचनी है इंडिया में. इंडिया इज अ बिग मार्केट, राइट? मोदी साहब बोलते हैं ऐसे ही नहीं आने देंगे, आपकी गाड़ी पे 250 का टैरिफ लगेगा. क्यों? नहीं तो हमारा टाटा मोटर्स डूब जाएगा, हमारी इंडियन कंपनीज डूब जाएगी. तो हमारा गाड़ी अगर 20 लाख में बिकता है और आपका गाड़ी भी 20 लाख में बिकता है तो लोग आपका ही गाड़ी खरीदेंगे, अमेरिकन कार. तो आपका गाड़ी 40 लाख में बिकेगा या तो 50 लाख में बिकेगा, राइट? एलन मस्क बोलता है ऐसा नहीं है, तो फिर तो मेरा गाड़ी इंडिया में आ ही नहीं पाएगा, राइट? मोदी साहब बोलते हैं आ जाओ, नो प्रॉब्लम, दोनों टाई अप करो, दोनों साथ में मिलकर कंपनी बनाओ, so that Indian company also is not affected, your company is also not affected. Secondly, if we are welcoming you in India, you also welcome us in US. We will also sell our cars there. Logic समझा? Now, Mr. Mukesh Ambani and Mr. Elon Musk are signing the deal. A company is formed. बराबर? अभी इधर मुकेश अंबानी साहब आए, लेकिन एलन मस्क अवेलेबल नहीं है, वो और कोई कंट्री में गए हुए हैं टूर पे. तो बोलते यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी वाइफ आ जाएगी, बिकॉज शी इज द इक्वल पार्टनर इन टेस्ला कंपनी. तो इवन इफ शी साइंस द डॉक्यूमेंट्स, आवर कंपनी इज फॉर्म. तो मिस्टर मुकेश अंबानी एंड एलन मस्क दे साइन द डॉक्यूमेंट. अब ये दो में से एक अवेलेबल नहीं है तो उसका पार्टनर चलेगा. मुकेश अंबानी जी अवेलेबल है, एलन मस्क की वाइफ साइन करके डॉक्यूमेंट, राइट? अभी दूसरी बार एलन मस्क अवेलेबल है, मुकेश भाई बोलते मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, नीता जी आ जाएगी, right? She is much more powerful than me also. Are you getting this? Ultimately the company is formed. तो आप चार अलग अलग स्टाइल में डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो. A into B into cos theta, B into A into cos theta, A into B cos theta. दो ही. A as it is, B का component. कौन सा component? क्योंकि साइन component तो मुझे आंसर 0 दे रहा है, या तो फिर B into A cos theta. समझा सबको? तो नाउ माय फाइनल मोस्ट आंसर इज, यहां पे मुझे क्या ढूंढना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट. मैंने इधर ए नहीं लिखा है, ए cos थीटा लिखा है, मतलब मुझे ए cos थीटा ढूंढना है. तो व्हाट इज ए cos थीटा? कम ऑन, इज इट ए बार डॉट बी बार अपॉन बी? ए बार डॉट बी बार वाज ए cos थीटा इनटू बी. मुझे कंपोनेंट ऑफ ए ढूंढना है. Who is component of A? Which component is available? Sin की cos. तो ये बेटा मेरा एक फॉर्मूला हो गया. Yes or no? आप लोग बताओ मुझे, इधर क्या लिखूंगा मैं? B cos theta is equal to A bar dot B bar upon A. Now look at the beauty of this. ये क्वेश्चन AIPMT में आया था. AIPMT मतलब All India Pre-Medical Test, which is now known as NEET, NEET, right? What is B bar upon B? Very good. Unit vector of B. Very good. So is it A bar dot B cap? Tell me who is this? A cap. So can I say this is B bar dot मैं A cap बाद में लिखूँ तो भी चलेगा ना? Dot product is commutative, right? So I get two very, very beautiful results. A cos theta is A bar dot B cap and B cos theta is B bar dot A cap. अभी थोड़ा confusing है because options एकदम close देते हो लोग. तो याद रखने का टेक्निक देता हूँ. अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, this question had come in AIPMT, All India Pre-Medical Test, and the question was, what is projection of vector A और वेक्टर बी? ये क्वेश्चन था. ऑप्शंस
A bar dot B bar, A bar dot B cap, A cap dot B bar, A cap dot B cap. ऑब्वियसली अभी आर्टिकल आपके सामने से आपको फटाक से आंसर आएगा कि आंसर इज सेकंड वन. इट इज A bar dot B cap, प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B cap, so A bar dot B cap. लेकिन इसको याद रखने का स्टाइल देता हूं. ऑफ एज इट इज, ऑन के ऊपर कैप, ऑन कैप, ऑफ एज इट इज, उसको टच नहीं करना. राइट. सो व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B cap? ऑफ एज इट इज, ऑफ एज इट इज, ऑन कैप ऑन. यस और नो? चेक करो ये वर्क हो रहा है कि नहीं. ऑफ एज इट इज, ऑन. राइट. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लॉजिक समझा? सुपर श्योर? पक्का? आई वॉज वेरी स्लो बिकॉज अभी कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं बोले थे वो अभी हम लोग करने वाले हैं. दे आर ऑन कॉम्पोनेंट्स. प्रैक्टिस पेपर 4 याद करो. लास्ट 4 क्वेश्चंस मैंने ना बोले थे क्योंकि वो टाइम पे अपना डॉट प्रोडक्ट शुरू नहीं हुआ था. टुडे वी विल फिनिश ऑल दैट. ओके. I want first of all of you to be on page number 11, handwritten notes, right side top. I want all of you to be on handwritten notes, page 11, right side top. एकदम आराम से पढ़ो. मैंने शॉर्टकट भी दिया होगा याद कैसे रखने का. लास्ट में देखो उसके एंड में दिया होगा. ऑफ एज इट इज, ऑन के ऊपर कैप. और मैंने शायद ये भी लिखा होगा कि ये प्रीवियस AIPMT में आ चुका है. ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आया था. इंजीनियरिंग में भी आया था, मेडिसिन में भी आया था. प्लीज रिवाइज दैट. हाँ, और ऑन के बदले अलोंग वर्ड भी आ सकता है. ऑन या तो अलोंग आर सी. प्रोजेक्शन के बदले कॉम्पोनेंट वर्ड भी आ सकता है. करेक्ट. दे माइट चेंज द लैंग्वेज समटाइम्स. ऑन के बदले अलोंग भी हो सकता है. ऑन वर्ड के बदले अलोंग भी हो सकता है. आपको AIPMT में कौन सा क्वेश्चन है वो लिखना है, तो वो ये क्वेश्चन था एंड द आंसर वाज सेकंड ऑप्शन. ये AIPMT का ओरिजिनल क्वेश्चन है. आर यू डन विद दिस आर्टिकल? समझा आपको ये? असाइनमेंट 3 पे आ जाओ प्लीज. क्वेश्चन नंबर 16 पे स्टॉप किया था ना लास्ट. 17 का लैंग्वेज देखो. 17 का लैंग्वेज देखो. इज इट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर या तो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द. असाइनमेंट 3 बाली के प्रैक्टिस पेपर 3 नहीं. गॉड ब्लेस यू. आज तो पता नहीं डिस्ट्रैक्टेड एकदम. नींद आ रही है बहुत? फीवर है. ओके चलो. आर वी ऑन पेज नंबर 50 एवरीवन? ओके वी आर ऑन 17th क्वेश्चन. 17th मैं सॉल्व करता हूँ. 18th ध्यान से देखो. सिमिलर लैंग्वेज है ना. 17th में क्या बोला है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर. वो वेक्टर का नाम नहीं दिया हो, मैं दूंगा. 18th में आप लिखो सेम एज 17th. और ऐसा क्वेश्चन है. लेट मी फाइंड इट आउट फॉर यू इफ यू कैन फाइंड इट. ओके 29. 17th में आप लिखो सॉल्व 18 एंड 29. 18 और 29 दोनों में लिखो सेम एज 17th. मैं 17th क्वेश्चन पूरा सॉल्व करता हूँ. आप लोगों को कॉपी करोगे और फिर 18th और 29th आप लोग खुद से करोगे. 17th क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर? 2i plus 3j plus k. 2i plus 3j plus k. उन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया, मैं इसको a बोल देता हूँ. वेक्टर a. What is second vector? 3i plus 4k. What did I advise you? 3i plus 2j plus 4k. अब उनका लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने क्या पूछा है? उनका लैंग्वेज के हिसाब से कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी. बराबर. ऑफ ए ऑन बी ये पूछा है.
right? So what will this answer be? Component of A on B is A as it is, B के ऊपर कैप और बीच में डॉट आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं मैं। Is it A bar dot B vector upon B scalar? Oh lovely, because this is the meaning of unit vector. Yes or no? So can I say this is A bar dot B bar upon B? Yes or no? So is it AX BX plus AY BY plus AZ BZ upon B का मतलब रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? या तो आप अकेले A को शिफ्ट करते हो तो इधर B रह जाता है, और या तो आप B को शिफ्ट करते हो तो ये रह जाता है। यस और चलो फिल इन द ब्लैंक्स। समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग प्लस समथिंग इनटू समथिंग अपॉन रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। यस और पहला वेक्टर कौन सा था? 2 3 1 2 3 1। दूसरा वेक्टर कौन सा था? 3 0 4। So it is 3 0 4 और इधर भी मुझे लिखना पड़ेगा 3 0 4। तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 6 0 and 4 10 और मेरा डिनोमिनेटर हो गया 5। That means my final answer is 2. My final answer is 2. Before you copy this, please let me know. Have you understood this? Yes. Because 18th और 29th आप लोग अब भी करोगे मेरे सामने, राइट? आंसर आ गया मतलब आपको ये टाइप समझ में आ गया, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, absolutely important. I have been telling you right from the beginning, resolution of a vector, dot product and cross product are super important. 17th कॉपी करो, 18th और 29th खुद से करो। 3 minutes for you, 1 minute for copying this, 2 minutes for solving 18th and 29th. If you can pause the video, stop नहीं करना बेटा, pause. After you are done with 17th question, 18th question and 29th question of assignment 3, you can move on to practice paper 4, 17, 18, 19, 20. 17th question में शायद फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, थीटा दिया है, वर्क पूछा है। 18, 19, 20 तीनों की तीनों ये टाइप पे, तो 4 मिनट और लो और खत्म करो इसको। बस 17th का आंसर इज 250 जूल, 18th, 19th, 20 तीनों आया आपको? 20 अच्छा क्वेश्चन आया सबको? P bar dot Q bar is PQ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है P bar dot Q bar is PQ, ये बोला है ना? बोला एंगल ढूंढो। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है PQ cos थीटा और राइट हैंड साइड तो PQ खुद है। PQ गया, cos थीटा इज 1 and therefore थीटा should be 0। इजी था। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ऐसे देते हैं P bar dot PQ bar is minus PQ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा। मैं खाली वेरिएशन समझा रहा हूँ कि और वो लोग क्या कर सकते हैं, राइट? 180 का ऑप्शन है उसमें। एक नोट लिख लो फिर, क्वेश्चन नंबर 20 के नीचे नोट लिख लो। If P bar dot Q bar is coming as minus PQ, then theta should be 180 degree. Then theta should be 180 degree. और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझा? Sure. As far as dot product is concerned, it is complete. As far as assignment 3 is concerned, only these 3 questions are pending because I have not yet introduced the word electric flux and magnetic flux to you. This we will be doing after I start with cross product, right? Assignment 3 otherwise is complete. Practice paper 3 and 4 are complete. New topic.
अब ये जो टॉपिक मैं कर रहा हूं ना, ये सिर्फ एसएससी स्टूडेंट्स को था, और वो भी 2x2। मैं 3x3 भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट, this was there only for SSC students, it was not there for anyone else. Are you all on page number 31 of your book? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री के सारे आंसर्स रीड किए थे आप लोगों के? सिर्फ होमवर्क दिया था, राइट? और उसके आंसर्स रीड नहीं किए थे मैंने। आई विल जस्ट स्पीक आउट द आंसर्स सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। First, are you on page number 30? Are you on page number? Are you on page number 30? I am reading out these answers for you. Please cross-check whether you were right or wrong. Wait, please. Okay, shall I start? मैं पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के आंसर्स बोल रहा हूँ। पेज नंबर 30, फर्स्ट एक्सरसाइज वाज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। फर्स्ट आंसर इज π/6। मैं खाली π/6 बोलूंगा तो भी समझने का, पाई मींस पाई रेडियन, मैं हर बार रेडियन नहीं बोलूंगा। सेकंड आंसर इज π/3। थर्ड आंसर इज 2π/3। फोर्थ आंसर इज 5π/4। फिफ्थ आंसर इज 11π/6। सिक्स्थ आंसर इज 3π/2। Seventh answer is π/5. Eighth answer is π/2. Ninth answer is 7π/4. And the 10th answer is 3π/4. Are you getting this? All 10 correct? Seventh wala answer is π/5. Are you all right? Sorry? You are feeling cold? You want to go to the last bench? कैमरा हटाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्नर पे चला जा, वो इसी तरह ब्लो डायरेक्ट तेरे पे आ रहा है, लास्ट बेंच पे चला जा बेटा। ओके, आई डोंट माइंड, बट प्रॉब्लम इज ये है बीच में, पहले बोल देता है यार। चल नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। बेटर, लिटिल बेटर, और इज गो इन द कॉर्नर, बेटर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर 55 डिग्री, second 30 degree, third 210 degree, fourth 72 degree, fifth 22.5 degree। अब इसको आप तीन अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हो। 45/2 डिग्री, बिकॉज 45 का हाफ, या तो 22.5 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, 22 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये क्यों लिखा? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1/10 ऑफ अ डिग्री is 60/10 minutes। इसका मतलब every 0.1 degree is 6 minutes। So 0.2 should be 12, 0.3 should be 18, 6 का टेबल बोलने का, ये 0.5 है, so 30। So ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, और ये भी अलाउड है। बेटा ये आपको लिखना है तो लिख लो, उधर टॉप पे लिखो, सेम पेज पे। 1 डिग्री 60 minutes, so 0.1 degree 6 minutes। 14th का आंसर आई विल रिपीट, 72 डिग्री। 14th का आंसर इज 72 डिग्री। 2/5 into 180। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, आर यू ऑल विद मी? नेक्स्ट आंसर रीड करूं? कौन से पे थे हम लोग? 16th का आंसर इज 315 डिग्री। 17th का आंसर इज 18 डिग्री, 18। 18th का आंसर इज 540। 19th का आंसर इज 20 डिग्री, एंड 20 का आंसर इज 150 डिग्री। ठीक है, श्योर? ये हो गया डिग्री टू रेडियन। स्टे ऑन द सेम पेज प्लीज, स्टे ऑन द सेम पेज। ऑपोजिट पेज का टाइटल क्या है चेक करो, डिटरमिनेंट। नाउ दिस डिटरमिनेंट इज आल्सो कॉल्ड क्रैमर्स रूल, एंड उसके टॉप पे लिखो, एकदम टॉप पे, वो पेज के टॉप पे, वेरी वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद में 2x2 डिटरमिनेंट के 5 क्वेश्चन है। देखो
5 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें 4 एलिमेंट्स है खाली और बाकी 5 में 9 एलिमेंट्स है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 2 by 2, 3 by 3, 2 by 3 etc. Stop writing. Total focus on the board. Determinant का symbol is capital D, alphabet capital D, and it is written like this. It is written like this. AX AY BX BY. मतलब मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स है. एक है AXI plus AYJ और दूसरा है BXI plus BYJ. So AX AY BX BY are the values. Now this is called first row. Horizontal lines are called rows. So this is row number 1. This is row number 2. Okay, this is column number 1 and this is column number 2. Right? So इसको बोलते हैं 2 by 2 determinant. अब सबसे पहले क्या लिखने का? रोज. दिस इज 2 by 2 डिटर्मिनेंट वेयर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज. पहला हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखने का, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने का. ओके, सोच के बताओ. अगर मैं ऐसे लिखता हूं AX AY AZ BX BY BZ तो ये कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ? 2 by 3. बेटा इसके 2 रो थे, 3 कॉलम थे. और अगर इसको ऐसे लिखा तो AX AY BX BY BCX CY तो 3 रो है ना. पहले ये देखने का, फिर ये देखने का. समझा? आपको उधर ये वेरिएशंस नहीं है. पेज नंबर 31 पे आपको ये वेरिएशंस है ही नहीं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं. इसके बाद में डायरेक्ट 3 by 3 है. चेक करो. इज इट दिस AX AY AZ समथिंग लाइक दिस BX BY BZ CX CY CZ. इसको बोलते हैं 3 by 3 डिटर्मिनेंट. राइट? अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखने का? पहले मैं 2 by 2 सिखा रहा हूं तो सिर्फ उसका ही सोल्यूशन लिखता हूं. सोल्यूशन ऑफ 2 by 3 डिटर्मिनेंट इज सोल्यूशन ऑफ दिस इज AX को BY के साथ मल्टीप्लाई करो और BX को AY के साथ मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई. And you should always go from left to right. That is how the English language goes. You should always go from left to right. तो ये कैसे लिखोगे? AX into BY, BX into AY और बीच में माइनस साइन डालो. ये आपका आंसर होगा. इजी था कि नहीं? एकदम क्यूट. एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल कोई भी 4 डिजिट बोलो अपनी मर्जी का, कोई भी रैंडम. 7 5 8 एक आध नेगेटिव नंबर दो बेटा. -7. ओके, नाउ 7 minus 7 जा -49 minus 8 5 जा 40. that means my answer is -89. my answer is ये समझा बेटा आपको? अब ध्यान से देखो पेज नंबर 31 के बॉटम पे ये कॉपी करो एग्जाम्पल के साथ और उसके बाद में आप पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे. वो पेज के बाजू में ही सॉल्व करने का. अच्छे एकदम छोटा कैलकुलेशन है सर. हमेशा माइनस. कॉन्सेप्ट समझा बेटा? ये पेज नंबर 31 के बॉटम पे कॉपी करो. ये एग्जाम्पल को आप कॉपी करो. अब पेज नंबर 31 के टॉप पे आपको पहले 5 क्वेश्चंस 2 by 2 दिख रहे हैं, उसको सॉल्व करो पेंसिल से और नीचे आंसर्स दिए चेक करो. अगर आंसर्स मैच हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ. ना ये साइन माइनस, ये फॉर्मूला का साइन, बीच वाला साइन माइनस. फाइनल आंसर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है. अब सोच बेटा मैंने ऐसा किया 1 2 1 2 तो ये तरह 2 minus 2 0 हो गया. 0 एग्जाम्पल में इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहला 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ. नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ऊपर 5 क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व ही कर रहे हो तुम लोग. कैन यू पॉज दिस वीडियो फॉर 5 minutes? और those 5 questions आपका फर्स्ट का आंसर आएगा A -3 11.
आपका सेकंड का आंसर ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? अच्छा माइनस साइन, नीचे माइनस साइन है, हाँ हाँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो आंसर इज -1. साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट? तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, योर आंसर शुड बी -1. Your third answer should be 2 minus 12 minus 10. Your fourth answer should be 6 minus 7 13. Last one, x plus y the whole square minus x minus y the whole square. So when you open the bracket, x square और y square cut हो जाएगा. You will be left with 2xy minus 2xy, मतलब 4xy. आया बेटा सबको? सुपर श्योर. 2/2 डिटर्मिनेंट एकदम इजी था. इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं. तो डिटर्मिनेंट टाइटल के बाजू में लिखा आपने क्रैमर्स रूल. अभी 3/3 सुनो. एक मैं पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ. उसके बाद में बाकी के 5 क्वेश्चन में से आप कोई भी एक मेरे सामने करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बाकी का 4 घर पे करो, ठीक है? पहले मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको चाहिए तो वो 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं सिलेक्ट करके, और बाद में बाकी के 4 आप करो, और या तो मैं अपना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ कोई भी. हाँ, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेट. डी इज डिटर्मिनेंट, बुक बंद कर दो प्लीज. ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, CX, CY, CZ, right? Now the rule, first rule is plus, minus, plus. Always remember, plus, minus, plus. Step number 1. Step number 2, extreme left top से शुरू करने का. आप जब अपने पेज पे कुछ भी लिखते हो, और है ना? हाँ. आप जब अपने पेज पे कुछ लिखते हो तो आप हमेशा लेफ्ट से शुरू करके राइट पे जाते हो. आपका फर्स्ट लाइन खत्म हो जाता है तो आप सेकंड लाइन में भी लेफ्ट से शुरू करके राइट पे जाते हो. सो रूल नंबर 2 इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, गो टू द राइट. रूल नंबर 3, एनी वन एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट रो एंड दैट कॉलम, रेस्ट ऑल आर ब्लॉक्ड. मैंने AX सिलेक्ट कर लिया तो AY AZ ब्लॉक हो गया, और BX CX भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ का एलिमेंट सिलेक्ट किया तो इसलिए ये दोनों को ब्लॉक किया. ये भाई 3 में से कोई भी एक आ सकते हो, तीनों नहीं आएंगे. इसमें भी 3 में से कोई भी एक आ सकते हो, राइट? सो नाउ चेक, आई शुड राइट दिस एज प्लस AX ब्रैकेट समथिंग माइनस AY ब्रैकेट समथिंग प्लस AZ ब्रैकेट समथिंग. इतना पार्ट समझा? और ये ब्रैकेट लिखना बहुत इजी है, क्योंकि ये ब्रैकेट आपका वो प्रीवियस आर्टिकल है. देखो क्यों, आपने ये एलिमेंट लिया, ये दोनों ब्लॉक हुए, ये दोनों ब्लॉक हुए, बाकी बचे 4, और 4 कैसे सॉल्व करने का आपको आता है. तो हु इज दिस? BYCZ माइनस CYBZ. अभी इसका भी एकदम खूबसूरत टेक्निक देता हूं. बाहर A है ना, अंदर A आएगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है. मतलब अगर बाहर A है तो अंदर B एंड C आएगा 2 बार, B एंड C 2 बार, B एंड C 2 बार, बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन, बीच में माइनस साइन. पहला वाला ये AX था तो अंदर क्या आएगा? BYCZ एंड दिस इज BZCY. अभी इधर AY था ये, तो AY की वजह से ये दोनों ब्लॉक हुए और ये मिडल वाला लाइन ब्लॉक हुआ. दैट मींस इट इज BXCZ एंड BZCH. अभी इधर Z आया, BXCY BYCH. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बाहर A आया तो अंदर A आएगा ही नहीं. बाहर X आया ना, तो देखो इधर X ही नहीं आएगा. बाहर Y आया तो इधर Y नहीं आएगा. बाहर Z आया तो इधर Z ही नहीं आएगा. कॉम्बिनेशन समझा बेटा? कि वापस एक बार लिख के बताओ, एक बार वापस लिख के बताओ. आप लोग बोलो.
चलो एक नया डिटर्मिनेंट लेता हूँ. पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड आर एक्स आर वाई आर जेड. स्टेप नंबर 1 प्लस माइनस प्लस. ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ. सबसे पहले क्या करने का, पी एक्स इंटू समथिंग माइनस पी वाई इंटू समथिंग प्लस पी जेड इंटू समथिंग. अभी बाकी कौन बचा, क्यू एंड आर. सो दिस इज क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर minus minus minus. This will be x. So yz zy. This is y. xz zx. This is z. xy yx. Solution समझा? Sure? x आया ना तो उसके बाद में yz. ये y आया तो xz. सीक्वेंस हमेशा लेफ्ट से फॉलो करने का. लेफ्ट टू z. x y z है ना, तो x आया तो बाद में y z. y आया तो z पहले देने का कि x. लेफ्ट से राइट जाना है हमेशा. तो पहला वाला x z आया, दूसरा उल्टा कर देने का. इधर जो आया इधर उल्टा, इधर जो आया इधर उल्टा. समझा? अभी आप लोग बोलो, मैं अपना कोई एग्जांपल लूं कि वो 5 में से कोई लूं? वो 5 में से कोई. ठीक है, बताओ कौन सा. सॉरी, कंपलसरी. ये प्लस माइनस प्लस कंपलसरी है बेटा, इसमें रूल कभी चेंज नहीं होता है. ये प्लस माइनस प्लस कंपलसरी. कौन सा वाला करूं? 10. ओके फाइन. ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट हो गया. अभी मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. लेट मी सी व्हाट इज द डिटरमिनेंट. बड़े स्मार्ट हो यार तुम लोग. बड़ा नंबर दिखाओ, नए आंसर के लिए सिलेक्ट किया, कोई बात नहीं. 5 6 minus 4. 5 6 minus 4. 4 3 2. 4 3 2. And last one is अच्छा है 13 12 की वजह से लिया, बड़ा टेबल है इसके लिए. चल स्टेप नंबर 1. हियर यू आर प्लस माइनस प्लस. सो इट इज प्लस 5 into something minus 6 into something प्लस माइनस 4 into something. हाँ तो माइनस 4 बराबर प्लस माइनस माइनस into something. ब्रैकेट में क्या आएगा? समथिंग समथिंग माइनस समथिंग 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 माइनस समथिंग 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 माइनस समथिंग समथिंग. चलो फिल इन द ब्लैंक्स. पहले 5 तो 3 0 12 2. 3 0 12 2. नेक्स्ट वन 6 4 0 13 2. 4 0 13 2. नेक्स्ट वन 4 12 33. 4 12 13 3. So this is going to be 5 0 minus 24. This is minus 6. 0 minus 26. And this is minus 4. This is 48 minus 39. So this is going to be minus 120. This is minus minus plus 156. And this is going to be 7 4s are 28. Right? Minus 28. 9 Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. Thank you so much. 0. Your answer should be 0. Matching? Yes. समझा बेटा? श्योर. 2/2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करने का समझा? 3/3 कैसे सॉल्व करने का समझा? एक प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके बताया. 6 7 8 9 आप सॉल्व करके आओगे. बाय चांस कुछ नहीं समझा उसमें, आस्क मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. अंडरस्टूड? Yes, sir. So that is all for the lecture of the day. Homework for you? No homework because we are just meeting a day after. Okay, and we have finished dot product today. We have started with the foundation of cross product because this is useful in cross product. We stop here for the day. This Wednesday no GCT. Reason: this weekend is a non-physics weekend. Right? So this Wednesday I will not keep GCT. Secondly, that is not the main reason. The main reason is when I start with cross product, I have to finish cross product in one go. That means I will need full 90 minutes to teach. वो स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए. अभी जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने शुरू किया तो उसका एक छोटा सा पार्ट स्पिल ओवर हुआ, वो आज किया हम लोगों ने. प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर. क्रॉस प्रोडक्ट में वी हैव टू गो कंटिन्यूअसली. ओके,
दिस इज देयर नो, यस ऑफ कोर्स। हैंड रिटन नोट्स देख लो, शायद नहीं होगा उसमें, है कि नहीं मुझे याद नहीं, डिटर्मिनेंट होगा शायद, जरा चेक करो क्रॉस, 12th पेज चेक करो, 12th पेज, थर्ड पेज पे है, हाँ थर्ड पेज पे हम लोगों ने लेफ्ट साइड टॉप किया था सिर्फ, राइट, थर्ड पेज पे, हाँ पेज 3 बॉटम पूरा हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, इट इज देयर, पेज नंबर 3 हैंड रिटन नोट्स में है, पेज नंबर 3 बॉटम। सो वी स्टॉप हियर फॉर द डे, बाय बाय, सी यू।